The Lord said we would do greater things than He. खुदावंद ने कहा कि हम इससे भी बड़े काम करेंगे। He knew that this technology would be available and I being 9,000 miles away from you, able to address you today and tomorrow. वो जानता था कि ये टेक्नोलॉजी दस्तयाब होगी और मैं आपसे 9,000 मील दूर आज और कल आपसे खिताब करने के काबिल हूँगा। I live in the state of Texas. मैं अमेरिका की रियासत टेक्सास में रहता हूँ। We have many cowboys and many cows and horses. हमारे पास बहुत से चरवाहे और बहुत सी गायें और घोड़े हैं। And I am so excited to be here with you today and tomorrow to talk about this subject that is so important to the Lord. और मैं आज और कल आपके साथ इस मौजू पर बात करने के लिए बहुत पुरजोश हूँ जो खुदावंद के लिए बहुत अहम है। I have had the blessed opportunity to travel in many parts of the world and throughout the US. मुझे दुनिया की बहुत सी जगहों और पूरे अमेरिका में सफर करने का मुबारक मौका मिला है। I have asked many pastors and Christians what they believe the main purpose of the church is. मैंने बहुत से पादरियों और मसीहियों से पूछा है कि उनके ख्याल में कलीसिया का बुनियादी मकसद क्या है। And most respond with the purpose of the church is to go and evangelize and to preach the gospel. और ज्यादातर जवाब देते हैं कलीसिया का मकसद खिदमत के लिए निकलना और अंजील की मुनादी करना है। Which we know that is very clear in scripture. जिसे हम जानते हैं ये बात किताब मुकद्दस में बहुत वाज़िया है। But then I'll get usually a list of other things like serving one another and youth ministry. लेकिन फिर मुझे दूसरी चीजों की एक फहरिस्त मिलेगी जैसे एक दूसरे की और नौजवानों की खिदमत करना। And when I ask them, what do you think the main purpose is? There seems to be some confusion with pastors and even Christians today. और जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपके ख्याल में असल मकसद क्या है तो ऐसा लगता है कि आज पादरियों और यहाँ तक कि मसीहियों के साथ भी कुछ उलझन है। As pastors and leaders, we need to know what is God's main purpose for our church. पादरियों और पासबानों की हैसियत से हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारी कलीसिया के लिए खुदा का बुनियादी मकसद क्या है। There is a lot of confusion and distraction within the body of Christ today about this subject of our main purpose. हमारे बुनियादी मकसद के मौजू के बारे में आज मसीह की कलीसिया के अंदर बहुत सारी उलझनें और खलल हैं। 1 Corinthians 14:33 says, "For God is not the author of confusion, but of peace, as in all the church of the saints." पहला करंथियों 14:33 कहता है, क्योंकि खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है, जैसा मुकद्दसों की सब कलीसियाओं में है। This word peace means having harmony and security and safety. लफ्ज अमन का मतलब है हम आहंगी, सलामती और हिफाजत। Not fearing, but in a tranquil place of peace and contentment. बल्कि अमन और इत्मीनान की पुरसुकून जगह में। But the reality is, many Christians today are not living in this peace and tranquility that God promises. लेकिन हकीकत ये है कि आज बहुत से मसीही इस अमन और सुकून में नहीं रह रहे हैं जिसका खुदा वादा करता है। Especially in this pandemic that is now affecting the entire world. खास तौर पर इस वबाई मर्ज में जो अब पूरी दुनिया को मुतासर कर रहा है। We are consumed, many people, over the wickedness that we're seeing that Satan is doing in our societies and in our governments. बहुत से लोग इस बुराई से शदीद परेशान और गैर महफूज हैं जो हम देख रहे हैं जो शैतान की तरफ से हमारे मुआशरों में और हमारी हुकूमतों में मुनज़्ज़म की गई हैं। And this is one of the reasons why so many of our Christians today in our churches are not experiencing this peace that God promises to those who put their faith and trust in Him. और ये एक वजह है कि आज हमारे गिरजाघरों में
हमारे बहुत से मसीही इस अमन का तजर्बा नहीं कर रहे हैं जिसका वादा खुदा उन लोगों से करता है जो उस पर ईमान और भरोसा रखते हैं। Jesus said in Matthew 11:28 through 30, यसु ने मत्ती 11 बाब 28 से 30 आयत तक कहा, He said, "Come unto me, all you who are labor and heavy laden, I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। This is a promise from the Lord to those who put their faith and trust in Him. यह खुदावंद की तरफ से उन लोगों से वादा है जो उस पर ईमान और भरोसा रखते हैं। But today, many Christians are not experiencing again the promises that God has, and it's a direct result of our subject matter of what we're talking about today and tomorrow. लेकिन आज बहुत से मसीही उन वादों का दोबारा तजर्बा नहीं कर रहे हैं जो खुदा ने किए हैं, और ये हमारे मौजू का बराह रास्त नतीजा है जिसके बारे में हम आज और कल बात कर रहे हैं। Let me ask you a question, pastors. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पासबानों। Is God's word adequate today to give us wisdom and direction and clarity for everything that pertains to our life? क्या आज खुदा का कलाम हमें हमारी जिंदगी से मुतल्लिक हर चीज के लिए हिकमत और रहनुमाई और वजाहत फराम करने के लिए काफी है? Yes? Yes, of course. Is God's Holy Spirit still powerful enough today to give us the ability to understand and walk in the righteousness of this peace that God says? जी हाँ जरूर। क्या खुदा का रूल कुद्दस आज भी उतना ताकतवर है कि हमें उस अमन की रास्तबाजी को समझने और उसमें चलने की सलाहियत दे जो खुदा कहता है? Of course He is. The Spirit of God is powerful today. God's power is not weakening as we see the world deteriorating. यकीनन वो है। खुदा की रूह आज ताकतवर है। खुदा की ताकत कमजोर नहीं हो रही है, क्योंकि हम दुनिया को बिगड़ते हुए देख रहे हैं। God's word is complete, lacking nothing when it comes to pertaining to life. जब जिंदगी से मुतल्लक बात आती है तो खुदा के कलाम में किसी चीज की कमी नहीं है। And His Holy Spirit is giving us and can give us all the power we need to understand and walk in righteousness. और उसका रूहुल कुद्दस हमें कुव्वत दे रहा है और हमें वो तमाम ताकत दे सकता है जिसकी हमें रास्तबाजी को समझने और चलने की जरूरत है। Yet for many Christians, they're not experiencing the promises that God says here. फिर भी बहुत से मसीही वो इन वादों का तजर्बा नहीं कर रहे हैं जो खुदा यहाँ कहता है। If you have a Bible, turn to Matthew 28. We're going to look at verses 19 and 20. अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मत्ती 28 की तरफ रजू करें और हम आयात 19 और 20 पर नजर डालेंगे। When these verses are normally or typically taught, the emphasis is on sending people out into the mission field. जब ये आयात आमतौर पर या खास तौर पर सिखाई जाती हैं तो लोगों को मिशन के मैदान में भेजने पर जोर दिया जाता है। It's a good verse that to emphasize that. इस आयत पर जोर देना एक अच्छी बात है। But I want to look at another aspect of these verses that is not very commonly taught today. लेकिन मैं इन आयात के एक और पहलू पर नजर डालना चाहता हूं जो आज आम तौर पर नहीं पढ़ाया जाता है। It says here, "Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen." यहाँ बयान किया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो,
और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। This word go in the Greek is porosomai. यूनानी जुबान में ये लफ्ज पोरोसमाय है। It means to be in motion of or be about doing. जिसका मतलब है हरकत में रहना या काम करने के लिए तैयार होना। And in this verse, the Lord Jesus is saying, go make disciples all. और इस आयत में खुदावंद यस्सु कह रहे हैं, जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। What does all mean in Tanzania? यहाँ इस सब का क्या मतलब है? What does all mean? It means everything, everybody, every believer that God is adding to our church, God is saying we need to make that person a disciple of Jesus Christ. सबका क्या मतलब है? इसका मतलब है सब कुछ, हर कोई, हर ईमानदार जिसे खुदा हमारी कलीसिया में शामिल कर रहा है, खुदा कह रहा है हमें उनको यस्सु का शागिर्द बनाने की जरूरत है। He didn't say some, he said all. उसने कुछ लोगों को नहीं कहा, उसने सबको ये हुक्म दिया है। This word go includes not only sending people out into communities in other countries, it includes the people that is around us within our churches. इस लफ्ज जाओ में ना सिर्फ लोगों को कौमों और दूसरे ममालिक में भेजना शामिल है, बल्कि इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो हमारे गिरजाघरों के अंदर हमारे आसपास हैं। The reality is, a person cannot be a disciple unless they are a believer. So these verses are more about the equipping than it is the saving. हकीकत यह है कि कोई शख्स उस वक्त तक शागिर्द नहीं हो सकता जब तक कि वो ईमानदार ना हो। लिहाजा ये आयात निजात देने से ज्यादा उसकी तैयारी के बारे में है। Now let me give you a little background where this verse came from. अब मैं आपको एक छोटा सा पस मंजर बताता हूं कि ये आयत कहां से आई है। Jesus has already been crucified and he raised from the dead. यस्सु पहले ही मसलूब हो चुका है और वो मुर्दों में से जी उठा है। And he went to his apostles. He says, I got one more message for you. So meet me at this mountain and I'm going to share that with you. वो अपने शागिर्दों के पास गया। खुदावंद यस्सु ने उनसे कहा कि मेरे पास आपके लिए एक और पैगाम है, इसलिए इस पहाड़ पर मुझसे मिलो और मैं इसे आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। These are the last words out of Jesus' mouth before he ascended into heaven. ये वो आखिरी अल्फाज हैं जो यस्सु के आसमान पर जाने से पहले उसके मुंह से निकले थे। When you think about the last words that came out of Jesus' mouth before he left to heaven, we should really pay some very important attention to those words, yes? जब आप यस्सु के आसमान पर जाने से पहले उसके मुंह से निकलने वाले आखिरी अल्फाज के बारे में सोचते हैं, तो हमें वाकई उन अल्फाज पर कुछ बहुत अहम तवज्जो देनी चाहिए। जी हाँ, Within these verses, God, Lord Jesus, is revealing the main purpose of the church. इन आयात के अंदर खुदावंद यस्सु मसीह कलीसिया के बुनियादी मकसद को जाहिर कर रहा है। These two verses are often referred to as the great purpose or the great commission of the church. इन दोनों आयात को अक्सर कलीसिया का अजीम मकसद या अरशाद आज़म भी कहा जाता है। Let me ask you, pastors, how many people in your churches know this? मैं आपसे पूछता हूं, पासबानों, आपके गिरजाघरों में कितने लोग ये बात जानते हैं? How many people in our churches know that when they came to our church, they were called to become a disciple of Jesus Christ? हमारे गिरजाघरों में कितने लोग जानते हैं कि जब वो हमारे गिरजाघर में आए थे तो उन्हें यस्सु मसीह का शागिर्द बनने के लिए बुलाया गया था? One of the things I do with pastors when I'm doing a conference is I challenge them to go back into their churches and ask their elders what they think a disciple is. जब मैं कॉन्फ्रेंसों में होता हूं तो पासबानों में मैं जो मनादी कर रहा होता हूं तो मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि वो अपने गिरजाघरों में वापस जाएं और अपने एल्डरों से पूछें कि वो शागिर्द के बारे में
क्या समझ रखते हैं। And many of these pastors have told me that they got many different answers from their leaders and elders in their church. और उनमें से बहुत से पादरियों ने मुझे बताया है कि उन्हें अपने गिरजाघरों में अपने रहनुमाओं और एल्डरों से बहुत से मुख्तलिफ जवाबात मिले हैं। The Lord does not want us to be confused over what is a disciple. खुदावंद नहीं चाहता कि हम शागिर्द के बारे में उलझन में पड़ें। And if our elders and leaders in the church are confused over what God says a disciple is, how can you expect the rest of the people in the church to understand what God's called them to do? अगर कलीसिया में हमारे बुजुर्ग और रहनुमा इस बारे में उलझन का शिकार हैं कि खुदा एक शागिर्द को क्या कहता है, तो आप कलीसिया के बाकी लोगों से क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो ये समझें कि खुदा ने उन्हें क्या करने के लिए कहा है। When people hear the word disciple, they commonly associate that with those 12 men that hung around Jesus for 3 years. जब लोग शागिर्द का लफ्ज सुनते हैं तो वो आम तौर पर उसे उन 12 आदमियों के साथ जोड़ते हैं जो 3 साल तक यीशु के इर्द गिर्द चलते रहे। They left their family, they left their friends. उन्होंने अपने खानदान को छोड़ दिया, उन्होंने अपने दोस्तों को छोड़ दिया। They performed miracles, healed the sick, cast out demons, and through the inspiration of the Holy Spirit, some of them wrote the New Testament. उन्होंने मौजज़े दिखाए, बीमारों को शिफा बख्शी, बदरूहों को निकाला और रूह कुदस की रहनुमाई से उनमें से कुछ ने नया अहदनामा भी लिखा। And because the church has not made it clear what a disciple is, most believers would believe that since they are not doing apostolic work, they cannot see themselves being a disciple. और चूंकि कलीसिया ने यह वाज़िया नहीं किया है कि शागिर्द क्या होता है, लिहाजा ज्यादातर ईमानदार इस बात पर यकीन करते हैं कि चूंकि वो रसूली खिदमत नहीं कर रहे हैं, लिहाजा वो खुद को शागिर्द के तौर पर नहीं देख सकते हैं। It is the work of Satan to keep pastors distracted and confused over what a disciple is and to be about making them. ये शैतान का काम है कि वो पादरियों को इस बारे में गुमराह और उलझन में रखे कि शागिर्द क्या है और उन्हें शागिर्द बनाने से दूर रखे। Because if a pastor is unclear what a disciple is and the process of making them, there is no way the people in their church and his congregations will ever answer the call to become one. क्योंकि अगर एक पादरी को ये वाज़िया नहीं है कि शागिर्द क्या है और उन्हें बनाने का अमल क्या है, तो उनके गिरजाघर के लोग और वो कलीसिया कभी भी एक होने की पुकार का जवाब नहीं देंगे। If making disciples is supposed to be the main purpose in the church, it is no wonder why we're not witnessing the peace and power of God that He desires in the people within our churches. अगर शागिर्द बनाना कलीसिया में बुनियादी मकसद समझा जाता है, तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि हम खुदा के अमन और ताकत को क्यों नहीं देख रहे हैं, जो वो हमारे गिरजाघरों के अंदर लोगों में चाहता है। We know as pastors and leaders, it is our responsibility to make it clear what a disciple is. हम पादरियों और रहनुमाओं के तौर पर जानते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये वाज़िया करें कि शागिर्द की हैसियत क्या है। We know as pastors and leaders, it's our responsibility to not only make that clear, but also to lay out the process of making a disciple. पादरी और रहनुमा होने के नाते हम जानते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ना सिर्फ इस बात को वाज़िया करें, बल्कि शागिर्द बनाने का अमल भी तय करें। Amen? आमीन। It is our responsibility, and we need to embrace this great commission and make it clear so every new believer that God brings into our churches, they know right away what God has called them to do and who God has called them to become.
ये हमारी जिम्मेदारी है और हमें इस अजीम काम को कबूल करने की जरूरत है और ये वाज़िया करने की जरूरत है कि हमारे गिरजाघरों में लाए जाने वाले हर नए ईमानदार को फौरी तौर पर मालूम हो जाए कि खुदा ने उन्हें क्या करने के लिए कहा है और खुदा ने उन्हें कैसा बनने के लिए बुलाया है। Turn to John 15. We're going to look at verses 7 and 8. यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब उसकी आयत 7 और 8 पर नजर डालेंगे। Within these verses, the Lord is making it clear what is the description of a disciple. इन आयात के अंदर खुदावंद शागिर्द के बारे में तफसील से बयान कर रहा है। It says, if you abide in me and my word abides in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. और वो कहता है कि अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। Now notice the first word in this verse 7. What is it in your Bible? अब आयत 7 के पहले लफ्ज पर गौर करें। आपकी बाइबल में क्या लिखा है? If. अगर। Yes, if you. So whenever the Lord was talking about discipleship, he always prefaced it with the word if. जी हां, अगर तुम। लिहाजा जब भी खुदावंद शागिर्दियत के बारे में बात करते थे वो हमेशा इस लफ्ज के साथ इस पेश लफ्ज को इस्तेमाल करते थे। It's a choice that every believer needs to make, to choose to become a disciple of Jesus Christ. ये एक इंतखाब है जो हर ईमानदार को यसु मसीह का शागिर्द बनने का इंतखाब करने की जरूरत है। But first, as pastors and leaders and as a church, we need to make clear what a disciple is. लेकिन सबसे पहले पादरी और रहनुमाओं के तौर पर और कलीसिया के मेंबरों के तौर पर हमें यह वाज़िया करने की जरूरत है कि शागिर्द क्या होता है और कौन है। It takes the desire and the cooperation from an individual, a Christian, to become a disciple. It needs cooperation. He or she needs to accept the calling and say, God, I'm ready and I'm willing to become your disciple. शागिर्द बनने के लिए एक फर्द या एक मसीही के अंदर ख्वाहिश और तावन की जरूरत होती है। इसे इस दावत को कबूल करने और ये कहने की जरूरत है कि आए खुदा, मैं तेरा शागिर्द बनने के लिए तैयार हूँ। So let's look at the 4 descriptions of what a disciple is. तो आइए 4 वजाहतों पर नजर डालते हैं कि शागिर्द क्या होता है। Number 1. नंबर 1, A disciple is one who has accepted and received Jesus Christ as Lord and Savior. शागिर्द वो है जिसने यसु मसीह को खुदावंद और नजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया है। In verse 7 it says, if you abide in me, to abide in Christ means that you have received him and the Holy Spirit's come into your life and he abides within us. आयत नंबर 7 में इरशाद है कि अगर तुम मुझ में कायम रहो। मसीह में रहने का मतलब यह है कि तुमने उसे कबूल कर लिया है और रूह कुद्दस तुम्हारी जिंदगी में आ गया है और वो हमारे अंदर रहता है। You cannot become a disciple of Jesus Christ unless you've received Jesus Christ as Lord and Savior. आप यसु मसीह के शागिर्द नहीं बन सकते जब तक कि आप यसु मसीह को खुदावंद और निजात दहिंदा के तौर पर कबूल नहीं करते। And out of the 269 times the word disciple is used in the New Testament, it was always referring to someone who has received Jesus as Lord and Savior. और नए अहदनामा में शागिर्द का लफ्ज 269 बार इस्तेमाल किया गया है। इसमें से हमेशा किसी ऐसे शख्स की तरफ इशारा किया गया था जिसने यस्सु को खुदावंद और निजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया है। In John 1:12 it says, but as many has received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. यूहन्ना की अंजील 1:12 में कहा गया है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं।
So the first description of a disciple is one who is born again, who's received Jesus Christ as Lord and Savior. लिहाजा शागिर्द की पहली वजाहत वो है जो नए सिरे से पैदा होता है, जिसने यीशु मसीह को खुदावंद और निजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया है। Number two, the description of a disciple is one who has become a student of the Word of God. नंबर 2, शागिर्द की वजाहत वो है जो खुदा के कलाम का तालिबे इल्म बन गया हो। Back to verse 7, it says, so that my word abides in you. 7वीं आयत में खुदावंद यीशु ने कहा, और मेरी बातें तुम में कायम रहें। In order for the Word of God to abide in us, we need to be studying, we need to be reading, we need to be seeking out others who would help us understand His Word, to put it within our own souls. खुदा के कलाम को हम में कायम रखने के लिए हमें मुताला करने की ज़रूरत है, हमें पढ़ने की ज़रूरत है, हमें ऐसे लोगों की तलाश करने की ज़रूरत है जो उसके कलाम को समझने में हमारी मदद करें और उसे हमारी रूहों में डालें। In 2 Timothy 2:15 it says, be diligent to present yourself approved of God, a worker who does not need to be ashamed, but rightly dividing the word of truth. दूसरा तिमोथियस 2:15 में कहा गया है, अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले के तौर पर पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। John 8:31 says, then Jesus said to those Jews who believed in him, if you abide in my word, you are my disciples indeed. यूहन्ना रसूल 8:31 में कहता है, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। To abide in his word, again, God says that a disciple is one who's made a decision to learn the will of God for their life. अपने कलाम पर कायम रहने के लिए एक बार फिर खुदा कहता है, शागिर्द वो है जिसने अपनी जिंदगी के लिए खुदा की मर्जी को सीखने का फैसला किया हो। It takes time, it takes a desire, it takes effort. इसमें वक्त लगता है, एक ख्वाहिश की जरूरत होती है, एक कोशिश की जरूरत होती है। But just as important, it takes someone coming alongside you to assist them to understand what they're reading in the Word of God, to explain how it applies to their life inwardly, but also outwardly to those around them. लेकिन इतना ही अहम यह है कि आपको अपने साथ किसी शख्स की जरूरत होती है ताकि वो आपको समझा सके कि आप खुदा के कलाम में क्या पढ़ रहे हैं और ये वजाहत कर सकें कि ये आपकी जिंदगी में अंदरूनी तौर पर बल्कि आपके आसपास के लोगों पर भी किस तरह लागू होता है। We know that every new believer comes to Christ as a baby. हम जानते हैं कि हर नया ईमानदार मसीह के पास एक बच्चे की हैसियत से आता है। You could be a professor in a university or a brain surgeon or a housewife. It doesn't matter. We all come to Christ as babies, knowing nothing that pertains to the God's will. आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर या दिमाग के सर्जन या घरेलू खातून हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब बच्चों की तरह मसीह के पास आते हैं, कुछ भी नहीं जानते जो खुदा की मर्जी से मुतल्लिक हो। As pastors and leaders, we know that God's word told us every believer comes to faith as a baby, as a child, knowing nothing. पादरियों और रहनुमाओं की हैसियत से हम ये जानते हैं, खुदा के कलाम ने हमें बताया है कि हर ईमानदार एक बच्चे की तरह ईमान लाता है, कुछ भी नहीं जानता है। They don't truly understand who Jesus was and is. वो वाकई नहीं समझते कि यीशु कौन था और कौन है। They do not know how to abide in intimate relationship with Jesus Christ every day. वो नहीं जानते कि हर रोज यीशु मसीह के साथ एक करीबी रिश्ता कैसे बरकरार रखा जाए। They don't understand the principles of the Christian faith. वो मसीही अकीदे के असूलों को नहीं समझते।
They don't know the promises that God gives them as their sons and daughters. वो उन वादों को नहीं जानते जो खुदा उन्हें बेटे और बेटियों के तौर पर देता है। They do not know of the promises that God gives to them as sons and daughters. वो उन वादों के बारे में नहीं जानते जो खुदा उन्हें बेटे और बेटियों के तौर पर देता है। They do not know how to walk in righteousness in obedience to God. वो नहीं जानते कि खुदा की फरमाबरदारी में रास्तबाजी पर कैसे चलना है। They do not know how to be a husband, a wife, or a parent either. वो नहीं जानते कि शोहर, बीवी या वालिदैन कैसे बनना है। Let me ask you, pastors, do you agree with what I just shared with you? मैं आपसे पूछता हूं, पासवानों, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है? They all come absolutely ignorant. वो सब बिल्कुल जाहिल हैं। We need to explain to them that the second attribute of being a disciple is becoming a student of His Word and beginning to learn how to walk in righteousness of Christ. हमें उन्हें समझाने की जरूरत है कि शागिर्द होने की दूसरी खसूसियत उसके कलाम का तालब इल्म बनना और मसीह की रास्तबाजी में चलना सीखना है। Number 3 attribute of a disciple. नंबर 3, शागिर्द की सिफात। A disciple is one who receives the Word of God with the full intention to work it out. शागिर्द वो है जो खुदा के कलाम को उस पर अमल करने के पूरे इरादे के साथ कबूल करता है। In James 1:22 it says, "Be ye doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves." याकूब का खत उसका पहला बाब उसकी 22 आयत में कहा गया है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। God wants our attitude as a disciple to be willing to receive the Word of God as instructions from Him for us to work out in our daily lives. खुदा चाहता है कि एक शागिर्द की हैसियत से हमारा रवैया खुदा के कलाम को उसकी हदायत के तौर पर कबूल करने के लिए तैयार हो, ताकि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में काम कर सकें। We know it is by God's grace through the power of the Holy Spirit that enables us to walk in obedience in righteousness of the Lord. हम जानते हैं कि ये खुदा के फजल से, रूल कुदस की ताकत के जरिया से है, जो हमें खुदावन की रास्तबाजी में फरमाबरदारी में चलने के काबिल बनाता है। But the important aspect of this, does the person truly desire to be obedient? Do they truly accept His instructions as from God for them to work out in their life? लेकिन उसका अहम पहलू यह है कि क्या ये शख्स वाकई फरमाबरदार होना चाहता है? क्या वो वाकई खुदा की तरफ से उसकी हदायत को कबूल करना चाहता है ताकि वो उसकी जिंदगी में काम कर सके? There is a very demonic idea penetrating the church today that since we are under God's grace, it is not important for us to walk in obedience to God. आजकल कलीसिया में एक बहुत ही शैतानी ख्याल गर्दिश कर रहा है। चूंकि हम खुदा के फजल के मातहत हैं, इसलिए हमारे लिए खुदा की ताबेदारी में चलना जरूरी नहीं है। That since God loves us and His grace is extended to us, it doesn't matter if we're walking in obedience. We can do what we want and there's no consequences for that. चूंकि खुदा हमसे मोहब्बत करता है और उसका फजल हम पर बड़ा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम ताबेदारी में चल रहे हैं या नहीं। हम जो चाहते हैं कर सकते हैं और उसके लिए कोई नताइज नहीं है। If we remain ignorant to the will of God, God knows how to lovingly discipline. He knows how to get our attention. अगर हम खुदा की मर्जी से गाफिल रहें, तो खुदा जानता है कि किस तरह मोहब्बत से नज़्म ज़ब्त करना है। वो जानता है कि हमारी तवज्जो कैसे हासिल करनी है। In the United States, statistics tell us that over 45% of people who proclaim to be Christians are on antidepressant medicine. रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका में अदादो शुमार हमें बताते हैं कि मसीही होने का ऐलान करने वाले
45% से ज्यादा लोग एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात ले रहे हैं। In the United States, over 45% of people who profess to be Christians are taking antidepressant medicines every day. रियासत हाय मुतहद्दा अमेरिका में मसीही होने का दावा करने वाले 45% से ज्यादा अफराद हर रोज एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात ले रहे हैं। And many of these have counseled over the last 28 years. When you examine their life, they have an attitude that it doesn't matter if they know and are walking in the obedience of God. और उनमें से बहुत से लोगों ने पिछले 28 सालों में इस्लाहकारी ली है। जब आप उनकी जिंदगी का जायजा लेते हैं तो उनका रवैया ये होता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खुदा की ताबेदारी में चल रहे हैं या नहीं। God says He wants us to walk in righteousness and according to His will. खुदा फरमाता है और वो चाहता है कि हम रास्तबाजी और उसकी मर्जी के मुताबिक चलें। There is no peace, there is no joy, there is no contentment when we walk in ignorance and disobedience to God. कोई अमन नहीं, कोई खुशी नहीं है। जब हम जहालत और खुदा की नाफरमानी में चलते हैं तो कोई इत्मीनान नहीं होता। We are secure in our salvation as His sons and daughters. हम उसके बेटे और बेटियों की तरह अपनी निजात में महफूज हैं। God will never leave us or forsake us. खुदा हमें कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही हमें तर्क करेगा। But our ignorance and walking in disobedience has consequences upon His children. लेकिन हमारी जहालत और नाफरमानी में चलने के नताइज उसकी औलाद पर मुरतब होते हैं। We need to tell those that God is adding to our church the consequences of remaining ignorant or rebelling against God's instructions. हमारे लिए ये जरूरी है कि हम उन अफराद को बताएं जिन्हें खुदा हमारी कलीसिया में शामिल कर रहा है, जो जाहिल रहने या खुदा की हिदायत के खिलाफ बगावत करने से पैदा होने वाले मुमकिना नताइज से पैदा हो सकते हैं। Our God is a good Father. हमारा खुदा एक अच्छा बाप है And He promises to complete that work in each of us when we receive Him. और वो वादा करता है कि जब हम उसे कबूल करेंगे तो वो हम में से हर एक में अपने काम को मुकम्मल करेगा। And if we stay ignorant and rebel against His instructions, God knows how to discipline us, to motivate us, to hit our knees and cry out to Him and say, Father, I'm sorry. Give me the grace to walk out what you've asked me to do. और अगर हम जाहिल रहें और उसकी हिदायत के खिलाफ बगावत करें तो खुदा जानता है कि हमें किस तरह नज़्म ज़ब्त सिखाना है, हमें कैसे तरगीब देना, घुटने टेकना सिखाना, उससे पुकारना और कहना है, आए बाप मुझे माफ कर दे, आपने मुझसे जो कुछ करने को कहा है उस पर काम करने के लिए मुझे फजल अता फरमा। So that third description of a disciple is one who desires to work out by the grace and power of the Holy Spirit God's instructions in his life or her life. लिहाजा शागिर्द की तीसरी वजाहत यह है कि ये वो शख्स है जो रूल कुद्दस के फजल और ताकत पर भरोसा करते हुए अपनी जिंदगी में खुदा की हदायत पर पूरी तंदही से अमल करने की शदीद ख्वाहिश रखता है। Number 4. नंबर 4, A disciple will manifest in his or her behavior a gradual but consistent transformation into the image of Jesus Christ. एक शागिर्द अपने तर्ज अमल में यसु मसीह की शबी में बतदरीज लेकिन मुस्तकिल तब्दीली का इजहार करेगा। John 15:8 says that my Father will be glorified. यूहन्ना की अंजील उसके 15:8 में लिखा है, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है That you will bear much fruit कि तुम बहुत सा फल लाओ, and that you would be my disciple. जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। Luke 6:40 says the disciple is not above his teacher, but in everyone who is perfectly trained will be like his teacher. लूका 6:40 फरमाता है, शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। A disciple of Christ will begin to experience the transforming power by the Holy Spirit to begin to glorify Jesus Christ. मसीह का शागिर्द होने के नाते
वो रूल कुदस के जरिए तब्दीली की ताकत का तजर्बा करना शुरू करेगा और मसीह को जलाल देगा। The word glorify means to reflect. जलाल के लफ्ज का मतलब है मुनक्स करना। God is not saying that we would all become messiahs as Jesus was. खुदा ये नहीं कह रहा है कि हम सब यस्सु की तरह मसीह बन जाएंगे, But he said we will begin to glorify his nature. लेकिन उसने कहा कि हम उसकी फितरत को दूसरों में मुनक्स करना शुरू कर देंगे। Jesus gave us the best example of what discipleship making looks like. यस्सु ने हमें इसकी बेहतरीन मिसाल दी कि शागिर्दियत कैसी होती है। Jesus, the Messiah, the Savior of the world, showed us the value and the importance of discipling other people. यस्सु मसीह जो दुनिया का नजात दहिंदा था, उसने हमें दूसरे लोगों को तरबियत देने की कदर और अहमियत के मुतालिक बताया। Not every believer is going to be called into full-time ministry. हर ईमानदार को कुल वक्ती खिदमत में नहीं बुलाया जाता। They're not going to be called to maybe be a youth pastor or a worship pastor or some other form of service in the church, but every believer is called to become a disciple of Jesus Christ. इन्हें शायद एक नौजवान पादरी या चर्च का पादरी या कलीसिया में खिदमत की किसी और शक्ल के तौर पर नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन हर ईमानदार को यीशु मसीह का शागिर्द होने के लिए बुलाया जाता है। But another major problem within the body of Christ is that pastors and people in leadership do not see the importance of themselves discipling other people. लेकिन मसीह की कलीसिया के अंदर एक और बड़ा मसला यह है कि पादरी और कलीसियाई क़यादत में लोग दूसरे लोगों को तरबियत देने की अहमियत को नहीं देखते हैं। In John 13 verse 16 it says, I say to you, a servant is not greater than his master. यूहन्ना 13 बाब 16 आयत में कहा गया है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। So God is saying to pastors, to leaders, to youth workers, to worship ministers, God is saying to all of us, we need to do what Jesus did. We need to glorify the Lord Jesus. लिहाजा खुदा पादरियों, कलीसिया के रहनुमाओं, यूथ लीडर्स, परस्तारों से कह रहा है कि हमें वही करने की जरूरत है जो यीशु ने किया था, तो हमें भी यीशु को जलाल देना जरूरी है। That includes doing what Jesus did. Jesus discipled men. He poured into these men, teaching them how to understand and walk out what he instructed. इसमें वो तमाम काम करना भी शामिल है जो यीशु ने किए थे। यीशु ने आदमियों को शागिर्द बनाया, उसने उन लोगों को सिखाया और अपनी तालीम दी कि कैसे इसे समझना और खिदमत के लिए बाहर निकलना है। God in Scripture exhorts leaders to be examples to follow so others would do as they do. खुदा और किताबे मुकद्दस रहनुमाओं को तलकीन करती है कि वो दूसरों के लिए मिसाल बने ताकि दूसरे लोग भी वैसा ही करें जैसा वो करते हैं। Jesus was the Messiah. यीशु मसीहा था। He was the best teacher and the most anointed teacher that ever walked the face of this earth. वो सबसे बेहतरीन उस्ताद और सबसे ज्यादा मसाशुदा उस्ताद था। उसने जमीन पर कदम रखा और हमारे दरमियान रहा। There was no better teacher. उससे बेहतर कोई उस्ताद नहीं हो सकता है। Do you agree with me, brothers and sisters? क्या आप मुझसे मुत्तफिक हैं, बहनों और भाइयों? Yes. How many times after Jesus taught did the apostles come to Jesus and say, "What did you say? We don't understand." हाँ, यीशु की तालीम के बाद कितनी बार रसूल यीशु के पास आए और कहने लगे, आए उस्ताद, आपने क्या कहा? हम नहीं समझते। What did Jesus do in response to that? यीशु ने उसके जवाब में क्या कहा? He didn't say, "Wait a minute, weren't you paying attention?" उसने ये नहीं कहा, एक मिनट ठहरो, क्या आप मेरी बात पर तवज्जो नहीं दे रहे थे? He didn't say, you know what, I'm too busy to do that. I need to go feed these people. I need to go heal these people. He didn't make excuses, but he sat and explained what he taught to them. उसने ये नहीं कहा
तुम जानते हो क्या, मैं ऐसा करने के लिए बहुत मसरूफ हूं। मुझे उन लोगों को खाना खिलाने की जरूरत है, मुझे लोगों को शिफा देने की जरूरत है। उसने बहाने नहीं बनाए और वो बैठ गया और उन्हें समझाया कि उसने उन्हें क्या सिखाया था। Jesus Christ gave us the best example in how important it is and how to disciple others. यसु मसीह ने हमें बेहतरीन मिसाल दी कि ये कितना अहम है और दूसरों को शागिर्द कैसे बनाया जा सकता है। If Jesus, the Messiah, showed us how important it is, then we need to accept that as something He's calling us to do ourselves. अगर मसीहा यसु ने हमें दिखाया है कि ये कितना अहम है, तो हमें इस बात को कबूल करने की जरूरत है कि वो हमें खुद इस काम को करने के लिए बुला रहा है। I've had many pastors tell me I don't have time to disciple people. मुझे बहुत से पादरियों ने कहा, मेरे पास लोगों की शागिर्दियत करने का वक्त नहीं है। My response to them is then that you are either doing things you're not supposed to do and or you have a priority problem in your life. उनके बारे में मेरा जवाब ये है, फिर आप या तो वो काम कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, और या आपको अपनी जिंदगी में तरजीही मसले का सामना है। My response to them is either you are doing things you should not do if you're too busy to disciple somebody, or you're devaluating or minimizing the call to disciple people. उनके बारे में मेरा जवाब ये है कि या तो आप ऐसे काम कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, या आप शागिर्द बनाने के लिए बहुत मसरूफ हैं, या आप शागिर्दियत की पुकार की कदर कम कर रहे हैं या कम समझते हैं। A pastor cannot disciple everybody in the church, एक पादरी कलीसिया में हर एक को शागिर्द नहीं बना सकता, but pastors need to discern the spiritual gifts that God has brought into the church through people, and those people that pastor needs to invest in and disciple them. लेकिन पादरियों को उन रूहानी नेमतों को समझने की जरूरत है जो खुदा उन लोगों के जरिए कलीसिया में ला रहा है। लिहाजा पादरी को उनमें अपना वक्त सर्फ करने और उनको तरबियत करने की जरूरत है। Jesus showed us by his life and by example the value and the importance of discipling people. यसु ने हमें अपनी जिंदगी और मिसाल के जरिए लोगों को नज़्म ज़ब्त देने की कदर और अहमियत दिखाई। Don't deceive yourself by believing your preaching on Sunday morning is accomplishing the discipling of your leaders. अपने आप को धोखा ना दें कि इतवार की सुबह आपकी मुनादी आपकी कलीसियाई रहनुमाओं की नज़्म ज़ब्त और तरबियत के काम को पूरा कर रही है। We need to make the time to be available to walk them through Scripture and teach them the application in and through their life, as Jesus did with the apostles. हमें वक्त की दस्तयाबी की जरूरत है, उनको किताब मुकद्दस के जरिए चलाने की जरूरत है और उन्हें उनकी जिंदगी में और उस पर अमल करना सिखाना है, जैसा कि यसू ने रसूलों के साथ किया था। Ephesians 4:16 says, "From whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working of which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love." इफिसियों 4:16 में कहा गया है, जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से व्यवस्था होकर और गढ़कर उस तासीर के मुआफिक जो बकदर हर हिस्सा होती है अपने आप को बढ़ाता है, ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। Did you hear that? Every part working together for, and all of us being responsible for the edifying, the building up of the body of Christ. क्या आपने ये सुना? हर हिस्सा मिलकर काम कर रहा है और हम सब मसीह के जिस्म की तमीर के जिम्मेदार हैं। As the Christian church, we need to make it clear to everyone that God is bringing to us, what is God calling them to do? मसीही कलीसिया की हैसियत से हमें हर एक को ये वाज़िया करने की जरूरत है
कि खुदा हमें बुला रहा है और वो हमें कुछ करने के लिए कह रहा है। We need to tell them God wants you to become a disciple. हमें उन्हें बताने की जरूरत है, खुदा चाहता है कि आप शागिर्द बने। We have to tell them what a disciple is. हमें उन्हें बताना है कि शागिर्द कैसी हस्ती है। We as pastors and leaders need to be exemplifying of making disciples so they would know and see us pouring into others, teaching them the things of God. हमें पादरियों और रहनुमाओं की हैसियत से शागिर्द बनाने की मिसाल बनने की जरूरत है, ताकि वो जान सकें और हमें दूसरों को तालीम देते हुए देख सकें, उन्हें खुदा की बातें सिखा सकें। We need to make clear and make sure it's implemented a strategy in our churches to be making disciples of every believer. हमें ये वाज़िया करने और इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत है ताकि इस हिकमत अमली पर अमल दरामद हो, ताकि हमारे गिरजाघरों में हर ईमानदार शागिर्द बनाए। It is my prayer, my brothers and sisters, that after this weekend, you will make sure every believer that God has brought under your care knows what a disciple is. मेरी बहनों और भाइयों, ये मेरी दुआ है कि इस हफ्ते के आखिर में आप इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हर ईमानदार जिसे खुदा अपनी निगरानी में लाया है, वो जानता है कि शागिर्द क्या होता है। It is my prayer that the material that we're going to give you tomorrow will help give you the tools and vision and how to implement a strategy to disciple the people that God is bringing to your care. ये मेरी दुआ है कि कल हम आपको जो मुआद देने जा रहे हैं, वो आपको उन लोगों की शागिर्दियत करने की हिकमत अमली पर अमल दरामद करने में मदद करेगा जो खुदा आपकी देखभाल के लिए ला रहा है। It is the pastor, the shepherd of the people, who is responsible to make this clear and protect it from being hindered from being lived out and practiced in the church. ये पादरी ही है जो लोगों का चरवाहा है, जो इस बात को वाज़िया करने और उसे कलीसिया में अमल पैरा करने के लिए जिम्मेदार है। Amen? आमीन। Okay, we're going to take a break, 15 minutes or so, and then we'll come back and get into our next session. ठीक है, हम 15 मिनट या इससे ज्यादा का वक्फा लेने जा रहे हैं और फिर हम वापस आएंगे और अपने अगले सेशन में दाखिल होंगे।